speed, train, express trains, passenger trains, large diameter taps, smaller diameter taps. Literally too much confusing. If you are confused, then watch this video because I have used different methods, easy methods and easy tricks to solve these type of the problems. So today we will discuss grade 10th quadratic equations word problems. That is exercise 4.3. Question number is question number 7th. So let's discuss the question number 7th. The difference of squares of two numbers is 180. The difference of squares of two numbers is 180 degree. Means difference is given to you. Difference means you have to subtract it. Difference of squares of two numbers means you have to do the square of two numbers. Done. You have, first of all, you have to do the square of these two numbers and then find the difference, and after it your answer is 180. Done. First condition is this. Second is the square of the smaller number, and when we have the square of the smaller number, that is equals to 8 times the larger number. 8 times larger number. Larger number. So last line is find the two numbers. Find these numbers. So we have to take a smaller number and a larger number. This is the first situation. This is the second one. Listen one thing students. अगर आपको क्वेश्चन जो मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, अगर आपको उनको रफ में फ्रेम करना आ गया तो इट्स इजी कि हम लोग उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली और हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली. मेनली आपकी है ये इक्वेशंस फ्रेम करनी. डन. सो फर्स्ट सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स पिक करें, मैंने उन दोनों का स्क्वायर करा और जब आप उसका डिफरेंस लोगे दैट इज 180 डिग्री. एक चीज़ समझने वाली है, जब भी हम पिक करते हैं आगे कौन सा नंबर रखते हैं, बड़ा वाला नंबर, फिर हम उसमें से छोटा नंबर माइनस करते हैं. डन. आंसर इज 180 डिग्री. सो अज्यूम दिस वन इज x and this one is y. So assume that this is x and this is y. So write down, let larger number be x and smaller number be y. Smaller number be y. Is that clear? So according to question, our first condition is larger number square minus smaller number square, that is equals to 180 degree. Sorry, not 1 degree, that is 180. And second condition is square of smaller number. Square of smaller number. Smaller number is y. So square of this number is 8 times larger number. Here larger number is x. So 8 times x. Done. So ऐसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका रफ फ्रेम बनाओ. क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन है आप उसका रफली फ्रेमवर्क रेडी करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस पे आओ, क्योंकि अगर इक्वेशंस बन गई है देन इट इज इजी टू सॉल्व द फर्दर फॉर एक्स एंड वाई. सो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. सो यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट. सो मैं इस तरफ लिख रही हूँ यूजिंग सेकेंड. आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x रिप्लेस कर सकते हो. डन. 180 इज पॉजिटिव ऑन राइट हैंड साइड. इसको लेफ्ट में कर लेते हैं. इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 दैट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसको यूज कर सकते हो. डिफरेंट वी हैव 3 मेथड्स. आप उनको यूज करके x की वैल्यूज निकाल सकते हो. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, second is method of completing square and third is quadratic formula. That is depend on you. मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही करूँगी क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा इजी लगता है फैक्टराइजेशन से कंपैरेटिव टू अदर. दैट इज डिपेंड ऑन यू. आपने कोई कौन सा मेथड यूज करना है. सो 180 इज देयर. सो फैक्टराइज 180. सो दिस इज लाइक इट. ओके 18 एंड 10. हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को 18x एंड 10x में. सो इट इज x स्क्वायर
minus 18x plus 10x minus 180. Done. So pairing these two and last these two. So from these two x is common and from second pair 10 is common. ठीक है. So taking common terms, write down x is common, x minus 18 and last is 10 is common. It is again x minus 18. Done. So our first bracket is x minus 18 and second bracket is x plus 10. Now split it. X minus 18 equals to 0. So our value of x is 18 and next is our value of x is minus 10. अब x की वैल्यू तो निकल आई है भाई. x भी लार्जर नंबर हमारे पास आ गया 18 एंड माइनस 10. फिलहाल हम अभी दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे. x इज 18 फर्स्ट केस. मेरे को y की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट करके निकाल सकते हो या आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो, वहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. मैं सेकेंड को यूज़ करूँगी. मेरे को ये थोड़ी सी इजी लग रही है. दोनों तरफ ही लिख लेते हैं या दैट इज डिपेंड ऑन यू. यूजिंग सेकेंड या पुट इन सेकेंड. सॉरी, पुट इन सेकेंड. टर्न बाय टर्न में दोनों तरफ पुट करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 18. रिप्लेस हियर. y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18. 8 इंटू 8 दैट इज 144 एंड remove this here, it becomes plus minus 12. आपका एक आंसर रेडी. Larger number is 18 and smaller number is 12. Done. Two cases are there. Next is on right hand side x is minus 10. Again replace here. Put in second 8 into minus 10. Okay. कभी ऐसी situation देखी है? Square is on left hand side and negative is on right hand side. Is it possible? No, is it not possible? Because square can't be negative. कोई भी square value negative के equal हो ही नहीं सकती. So that means rejected. And write down the reason for it. Reason is square cannot be negative. Done. This one rejected. So again, larger number. Two cases are there. And smaller number. Middle में हम ऐसे mention कर लेते हैं. First. Value of x on both sides, that is 18. Larger number is 18. Done. And smaller number is y. We have two values of y. Y की दो values है हमारे पास. First is positive 12. Second is negative 12. So these are the two situations. दो answers आ गए हैं. Larger number is 18. When larger number is 18, smaller number is 12. And second situation, when larger number is 18 and smaller number is minus 12. Done. So take the screenshot of this question. And next question is question number 8. That question is related to the distance, speed and time. Distance, speed and time of the trains. Question number 8 is, listen carefully. A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed. मतलब एक ट्रेन ने यूनिफॉर्म स्पीड पर 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा. मतलब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करी है एंड यहाँ तक उसमें यूनिफॉर्म स्पीड रही है, एक साथ एक जैसी स्पीड, और उसमें वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है? 360 किलोमीटर. डन. इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड तो जो है उसके बाद मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, मैंने उसकी स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. तब उस ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा. इज दैट क्लियर? डन. नेक्स्ट इज फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, डन. Now we have to put this situation in two cases. First one is, first of all draw it. ज़्यादा better है आप draw कर लो क्योंकि आपको easy लगता है draw करके. मेरे को तो easy लगता है. So I hope कि आपको भी easy लगेगा two situations में. Distance is 360 kilometer. Done. First of all, let speed in first situation.
हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं। पहले वो यूनिफॉर्म स्पीड पे 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब एक जैसी स्पीड पे, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। डन। एक चीज मुझे बताओ, डिस्टेंस इज गिवन टू यू, स्पीड हमने अज्यूम कर ली है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि ये बन गया 360 अपॉन x आवर्स 360 अपॉन x आवर्स। ऑन सेकेंड साइड अब हमने एक्सपेरिमेंट जो करा, मैंने जो स्पीड पहले थी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मैंने 5 किलोमीटर और ऐड कर दिया जो इस स्पीड में प्रीवियस स्पीड थी। सो लेट स्पीड बिकम्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर दी अपनी, x प्लस 5 किलोमीटर पर। सेम हियर, फाइंड द टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस वन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर मैं x स्पीड से जा रही, मैंने इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो मेरे को टाइम लगेगा 360 अपॉन x किलोमीटर, x आवर्स, सॉरी नॉट किलोमीटर्स, 360 अपॉन x आवर्स। दूसरे सिचुएशन में मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है कार की, इंक्रीज कर दी, मेरे को ऑब्वियस है ये फैक्ट है कि अगर मैं फास्ट स्पीड से जाऊंगी प्रीवियस वाले से तो मेरे को कम टाइम लगेगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी जहां मेरे को पहुंचना है, वहां मेरे को लेस टाइम लगेगा, और जब मेरी स्पीड कम है वहां मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मैं ये कीवर्ड साथ में लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों को यूज़ करके एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अभी एक सिचुएशन को सॉल्व करना है। सॉरी, द फर्स्ट सिचुएशन में मेरे पास अगर मेरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर मैं स्पीड इंक्रीज करूँ 20 तो मेरे को टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस है, ये फैक्ट है। डन। सो लिसन अगेन, if speed had been 5 kilometer per hour more, it would have take 1 hour less for the same journey, means 1 घंटा कम लगेगा। एक चीज बेटा याद रखना हमेशा, ये ज्यादा टाइम है और ये लेस, हम मोर में से लेस माइनस करते ऑलवेज। दोनों की जर्नी में जितना भी टाइम है, क्वेश्चन कहता है दोनों की जर्नी में 1 घंटे का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस स्पीड से मेरे को 5 घंटे लग रहे हैं तो इस स्पीड से मेरे को 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी चीज, दोनों की टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? मोस्टली यही भी सिचुएशन गलत होती है बच्चों की, मोर टाइम में से लेस टाइम माइनस करते हैं ऑलवेज, दैट इज 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। मैंने मोर टाइम में से लेस टाइम को सब्ट्रैक्ट करा, दैट इज 1 आवर, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। सो सॉल्व दिस सिचुएशन, टेक 360 एज अ कॉमन, so now take the LCM of these two. Done. So find the LCM of 1 upon x and 1 upon x minus 5. This is like it, x plus 5, ये बन जाएगा x plus 5 minus x. On right side 1 is there, x and x cancel, only 5 is there, 360 into 5. और ये वाली सिचुएशन में राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, साथ में मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, x into x becomes x square, 5 into x it becomes 5x. This is 1800, like it. Done. So एक तरफ कर लेते हैं हम लोग सिचुएशंस को, आप लोग इसको again quadratic is there, so we have 3 methods. First is factorization, second is method of completing square, and third method is quadratic formula. That is depend on you, जिसमें आपको comfortable हो, जो method आपको comfortable लग रहा है आप इसको apply कर सकते हो। Then if you have any problem in these 3 methods, so description box में इसको description box में आपको इसका link मिल जाएगा। Done. So factorize it. So it is 45x minus 40x, 1800, that is equals to 0. Now these are the two first pair. फर्स्ट पेयर में से हम x कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स x प्लस 45 एंड टेक माइनस 40 एज अ कॉमन टर्म एंड इट बिकम्स x प्लस अगेन 45. सो आवर फर्स्ट ब्रैकेट इज x प्लस 45 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 40. डन. हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दिस इज नेगेटिव,
value of first value of x is negative. Negative means x is speed of train. स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड ये नेगेटिव में आ गई है. क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में सुनी है? कभी कभी आपने बोला आज मैंने गाड़ी -60 की स्पीड से चलाई है, या आज मैंने गाड़ी भी -80 की स्पीड से चलाई है. इज इट पॉसिबल? नो बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल. सो रिजेक्ट दिस वैल्यू. डन. हम अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं करते हैं, जस्ट सिचुएशन को सोचो समझो कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नेगेटिव में नहीं जा सकती. सो दैट मीन्स दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू. सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 kilometer per hour. Done. Clear this situation? So please take a screenshot of this question. Okay, next question is question number 9. So next is question number 9. Question number 9 is two water taps together can fill a tank in 9 into 3/8 hours. Okay, done. बहुत इजी क्वेश्चन है. स्टेटमेंट देख के लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, बट इट इज इजी वन. डन. सो दिस इज अ टैंक. ये एक टैंक है. इसमें दो तरह की हमने टैप्स यूज करी हैं. एक तो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है जिसका डायमीटर बहुत स्मॉल सा. डन. एक मैंने टैप यूज करी है जिसका डायमीटर बहुत लार्ज है कंपैरेटिव टू फर्स्ट वन. डन. क्लियर. दोनों टैप्स मिलके एक टैंक को 9 into 3/8 आवर्स में फिल कर रही हैं. लिसन, दोनों टैप्स, स्मॉलर डायमीटर वाली टैप भी और लार्जर डायमीटर वाली टैप भी इस टैंक को फिल करने के लिए 9 into 3/8 आवर्स लगा रही हैं. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं. दिस इज 75/8 आवर्स. क्लियर दिस? क्लियर वन फर्स्ट सिचुएशन. ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट वन. The tap of larger diameter 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मैं अब इस सिचुएशन को दो केसेस में डिवाइड कर रही हूँ. यही टैंक है, सेम टैंक इज देयर. अब मैं स्मॉलर वाले से अगर मैं फिल करूँ तो इसको, ठीक है, और यही टैंक को मैं लार्जर वाले से फिल कर रही हूँ. लार्जर डायमीटर वाली टैप से. क्लियर. दोनों ही सेपरेटली अगर इनको फिल करें, अगर मैं जस्ट इस टैंक को, ये बड़ा वाला जो टैंक है, इसको मैं स्मॉलर टैप्स वाले डायमीटर से ही फिल कर रही हूँ, और दूसरी सिचुएशन में मैं इस टैंक को जस्ट लार्जर डायमीटर वाले टैप से फिल कर रही हूँ. अगेन लिसन द स्टेटमेंट. द टैप ऑफ लार्जर टेक्स 10 hours लेस. मतलब इस वाले टैंक सिचुएशन में 10 घंटे कम लगेंगे टैंक को फिल करने में. अगर ये फॉर एग्जांपल ये 15 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है स्मॉलर डायमीटर वाली टैप, तो ये करेगी 15 - 10 दैट इज 5 आवर्स. एंड सेकेंडली अगर ये टैप 25 आवर्स में फिल कर रही है, सो -10 करो 25 में से अपने आप. वेरी गुड, दैट इज 15 आवर्स. ये 15 आवर्स में फिल करेगी, 10 घंटे पहले फिल कर देगी इससे. सिचुएशन क्लियर? अब क्लियर हुई है. यू हैव टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. आपने बताना अगर मैं इस सिंपल छोटी वाली टैप से फिल करूँ तो कितने घंटे में पानी भरेगा, और इस टैप से फिल करूँ तब कितने घंटे में पानी फिल होएगा. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. लेट टाइम टेकन टू फिल वन टैंक. तो हम इसको दो सिचुएशन में डिवाइड कर लेते हैं. लार्जर डायमीटर टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप. डन. सो लेट टाइम टेकन टू फिल वन टैंक. एक टैंक को फिल करने में x आवर्स लग रहे हैं इसको.
और सेम सिचुएशन यहाँ पे, लेट टाइम टेकन टू फिल 1 टैंक, दैट इज, अब आप बताओगे अगर इसको x घंटे लग रहे हैं फिल करने में तो इसको 10 घंटे उससे ज़्यादा लगेंगे। ऑब्वियस है, आप खुद देखो, अगर इसको 5 घंटे लग रहे हैं तो 10 + 5 15 आवर्स, अगर इसको 15 आवर्स लग रहे हैं तो 15 + 10 25 आवर्स। छोटी डायमीटर वाली टैप है जो उसको 10 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। इस सिचुएशन में x आवर्स लग रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड सिचुएशन में लगेंगे x + 10 आवर्स। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज, ये तो था एक टैंक को फिल करने में कितने घंटे लग रहे हैं। अब इसी सिचुएशन को जरा मैं थोड़ा सा मोल्ड कर रही हूँ। डन। पहले हम लार्जर डायमीटर टैप की बात कर लेते हैं। लार्जर डायमीटर टैप जो है वो x आवर्स में एक टैंक फिल कर रही है। डन। पहले इस सिचुएशन को समझो, x आवर्स में एक टैंक फिल कर रही है, 1 घंटे में कितना फिल करेगी? दैट इज 1/x पार्ट ऑफ टैंक। क्लियर? लार्जर डायमीटर 1 आवर में 1/x टैंक फिल करेगी। सो टैंक फिल्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना टैंक फिल हुआ? 1/x। डन। अब सेकंड सिचुएशन में आ जाते हैं। जो स्मॉलर डायमीटर टैप है वो x + 10 आवर्स में एक टैंक को फिल कर रही है। डन। x + 10 आवर्स में एक टैंक को फिल कर रही है तो 1 आवर में कितना करेगी? 1 आवर में कितना करेगी ये कवर इसको? 1/x प्लस पार्ट ऑफ द टैंक। क्लियर? सो टैंक फिल्ड इन 1 आवर। दैट इज 1/x + 10। डन। मैंने ये सिचुएशन और 1 घंटे के अकॉर्डिंग निकाली है कि 1 घंटे में लार्जर डायमीटर टोटल जो बड़ा सारा टैंक है उसका कितना पोर्शन फिल कर देगी। सेम एज इट इज फॉर स्मॉलर डायमीटर। अब एक बात बताओ, दोनों टैप्स जब चल रही हैं, दोनों टैप्स मिलके इस टैंक को फिल कर रही हैं 75.8 आवर्स में। अगर मैं ये 1 घंटे के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ओनली 1 आवर के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ दोनों की, तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा 1 घंटे में ये कितना फिल हो रहा है, टैंक 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है। अब ये मैंने बात करी है सेपरेटली 1 घंटा अगर ये टैप चलती है तो 1/x टैंक फिल होता है। सेपरेटली अगर ये वाली टैप चलती है तो ये इतना टैंक फिल करती है। दोनों मिला के कितना टैंक फिल करेंगी? दैट इज फ्रॉम दिस वन। ये 1-1 घंटे का डाटा है। सो बट मैं इसको भी पहले 1 घंटे में कन्वर्ट करूंगी। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? लिसन, 75.8 आवर्स में एक टैंक फिल हो रहा है। अंडरस्टैंड? 75.8 आवर्स में एक टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना फिल होएगा? इसको ऑपोजिट कर दो उधर जाके, 8.75 पार्ट ऑफ द टैंक। सिचुएशन क्लियर है? एक बार फिर से समझो। सिंगल ये जो लार्जर डायमीटर टैप है ये 1 घंटे में 1/x टैंक फिल करती है और ये 1/x + 10 टैंक को फिल करती है। ऐसे ही अगर दोनों को मैं ऑन कर दूं तो 1 घंटे में कितना पानी फिल होएगा? 8.75 ऑफ टैंक, 75 पार्ट ऑफ टैंक। डन। सो 1 घंटे में वो फिल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टैंक फिल होता है 8.75 आवर्स में। अब दोनों टैप्स ऑन कर दें, वो कि 1 घंटे में कितना पानी दोनों दे रही हैं एक टैंक को, दैट इज 1/x + 1/x + 10। नाउ टेक द LCM, दिस इज x and x + 10, multiply it, x + 10 + x, that is 8.75। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रफ पैटर्न ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। Done this one. Okay. Next is, so x + x, it becomes 2x + 10 upon x² + 10x. Right side is 8.75. Now cross it.
क्रॉस कर देते हैं 75 इंटू 2 2x प्लस 10 एंड इट इज 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। आप इसमें से 2 कॉमन भी कर सकते हो, मैं कॉमन निकाल लूँगी और 8 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। मैं 2 फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकाल लेती हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा फिर ना। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक फिर कैंसिल करना है तब कैंसिल कर सकते हो आप। नाउ मल्टीप्लाइड 75x 375 4x स्क्वायर एंड दिस इज 40x। सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 दैट इज इक्वल्स टू 0। Now factor x square minus 60x plus 25x minus 375 that is equals to 0। So पेयरिंग कर लेते हैं और वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं। Done। So first value is x minus 15, second is 4x plus 25। So again subtract x की वैल्यू फर्स्ट जो हमारे पास आ रही है दैट इज 15 एंड सेकेंड जो वैल्यू हमारे पास x की आ रही है दैट इज माइनस 25/4 x आवर्स घंटे। घंटे कभी नेगेटिव में सुने हैं? आज मैं जी -5 आवर्स पढ़ाई करी आज मैंने, तो मैथ्स ही पढ़ा है जस्ट -5 आवर्स। सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो रिजेक्ट दिस सिचुएशन, जस्ट अप्लाई द वैल्यूज इन योर डेली लाइफ। कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, x इज 15 सो 15 आवर्स 50 x वैल्यू है क्या वैसे? टाइम टेकन टू फिल 1 टैंक बाय लार्जर डायमीटर। लार्जर डायमीटर टैप जो है वो 15 घंटे लगाएगी फिल करने में एक टैंक को। डन। सो लार्जर डायमीटर टैप टाइम टेकन बाय लार्जर diameter tap that is 15 hours। Done। And time taken by smaller diameter tap। अब एक बात बताओ, स्मॉलर डायमीटर 10 घंटे ज़्यादा लगा रही है, लार्जर वाली अगर 15 घंटे लगा रही है तो स्मॉलर वाली 10 प्लस कर दो, 15 प्लस 10 दैट इज 25 hours। Done this question। So please take the screenshot of this question। So next question is question number 10. Question number 10 is also related to the trains. That question is related to express train and passenger trains। So देखते हैं आप जनरल नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। So let's discuss the question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train। So first of all take the two cases, express train and second is passenger train। Done। So an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore। Okay, express train फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डिस्टेंस। मेरे को लगता है डिस्टेंस लिख लेना चाहिए पहले, डिस्टेंसेस ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर मैं करेक्ट करूँ इसको, डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर इन दिस फर्स्ट सिचुएशन, ऑल्सो इन सेकेंड डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर। अब फर्स्ट सिचुएशन, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगाती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है वो ज़्यादा टाइम लगा रही है, अंडरस्टूड है। ये ट्रेन जो है 1 घंटा ज़्यादा लगा रही है एक्सप्रेस ट्रेन से। सो नेक्स्ट सिचुएशन इज इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दिस वन, you have to find the average speed of both the trains। ओके जाओ, एक चीज समझने वाली है, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है।
So let speed of passenger train be x kilometer per hour. Is that clear? x kilometer per hour. So obvious है express train उससे तेज चल रही है. So speed of express train is x plus 11 किलोमीटर पर आवर. मोस्टली जब भी कोई ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है तो हम डिस्टेंस स्पीड लिखने के बाद कॉमनली टर्म में हमारी टाइम लिखते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं. एंड फॉर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्लियर? एंड सेम हियर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब हमारा की फैक्टर मैंने पहले भी बताया, हम लोग लिखते हैं मोर टाइम लेस टाइम. एक चीज बताओ, सो इफ स्पीड इज, हमारी स्पीड अगर कम है देन तब हमें ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तब हमें ट्रैवलिंग में कम टाइम लगता है. सो दोनों के डिफरेंस में एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है. सो दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम इज 1 आवर. और एक बात बेटा हमेशा याद रखना, मैं ये कीवर्ड्स क्यों लिखवाया मोर एंड लेस, हम मोर टाइम में से लेस टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 132 upon x minus this value 132 upon x plus 11 that is 1 hour. ये भी टाइम है, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है एंड दिस इज अ टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन एंड दिस इज डिफरेंस टाइम है, ये भी 1 आवर का डिफरेंस है. 132 हम कॉमन पिक कर लेते हैं. सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ टेकिंग एलसीएम. अगर आप एलसीएम पिक करते हो तो ये बनता है x इंटू एक्स प्लस 11 एंड x प्लस 11 माइनस x. x एंड x कैंसिल. सो 132 मल्टीप्लाई बाई 11, 132 मल्टीप्लाई बाई 11 दैट इज 1452. और ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको राइट साइड में साथ में लेके जा रही हूँ. x इंटू एक्स इट बिकम्स x स्क्वायर एंड x इंटू 11 दैट इज 11x. डन. So this is the again quadratic equation. So by using any method from the 3 methods. So split this one. मैं factorization से ही कर रही हूँ. So क्योंकि मेरे को ये easy लगता है ये method. So हम इसको follow कर लेते हैं. Taking x common from these two c. And 33 minus 33. 33 minus 33 as a common term from last pair. So this is the first bracket x plus 44 and x minus 33. First of all x की वैल्यू आएगी आपके पास -44. नेगेटिव इज देयर. इज इट पॉसिबल कि स्पीड कभी नेगेटिव में हुए? इट इज नॉट पॉसिबल. सो रिजेक्ट दिस वैल्यू. रिजेक्टेड. सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इज 33. सो x एक्चुअल में है क्या? x इज द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. So therefore speed of passenger train is that is x means 33 kilometer per hour. Now write down the speed of express train. जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है दैट इज x plus 11 किलोमीटर पर आवर. x इज 33 plus 11 जब हम प्लस कर देते हैं दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर. So this is the speed of express train. Done. So please take a screenshot of this question. So our last question is question number 11. The statement is sum of areas of two squares is 468 meter square. Means sum of areas. Area of first square, area of second square is 468 meters square, and second condition is if the difference of their perimeters. So first of all take the perimeter of first square minus perimeter of second square, that is 24. The difference of their perimeters is 24 meters. Find the sides of the squares, means we have to find the
sides of the squares. So this question is related to the two squares, first and second square. Done. So question number 11th is, so first of all take the squares. This is the larger square having side x meters. So let length of the side of larger square be x meters. On another side take the second square, smaller square. This is the smaller square whose side is y meters. So let side of smaller square is y meters. Done. So listen one thing bete, this question is related to area and perimeter of the sphere. So we know that area of sphere हम निकालते हैं side into side. अब side into side भी इसको लिख सकते हो. Area of sphere is equals to side into side, और आप इसको लिख सकते हो side square. And next is perimeter. Perimeter of sphere is 4 times side. Done. 4 times side. So first of all, this is the first condition. So according to question, आप directly भी आपको लिख सकते हो इसको. Done. Area of first square. Area of this is side square. मतलब side को side से ही multiply करना. X को x से multiply करा, that is x square. Plus is there. Write down the plus here. Area of second square. Area of this square is y into y, that is y square equals to 468. This is our equation number first. Second is perimeter of first square. Perimeter of this one. जब भी हम perimeter निकालते हैं, perimeter means boundary. Perimeter means boundary. और area means area वो space है जो इसने occupy करी है. The area means the space occupied by the square, that is called area of the square. Now perimeter is 4 times side. Done. Perimeter of first minus perimeter of second. Listen one thing बेटे, ये larger scale है तो इसका perimeter हम आगे रखेंगे क्योंकि हम बड़ी वाली चीज में से छोटा वाला माइनस कर रहे हैं perimeter. So perimeter of first is 4 into x minus perimeter of this one, that is equals to 24. आप 4 लेफ्ट साइड में से कॉमन ले सकते हो और फिर हम उसको 24 की तरफ ले जाके डिवाइड कर सकते हैं. एंड आफ्टर कैंसलेशन इट बिकम्स x minus y equals to 6. That is depend on you. आपने कौन सी वैल्यू इसमें से निकालनी है, either by x or by y. मैंने इसमें से x की वैल्यू चूज करी है. This is our equation number second. अब these are the two equations. आप इनको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे को ये मेथड इजी लगा कि सेकंड में से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूं और फिर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं. यहाँ आप लिख सकते हो यूजिंग सेकंड एंड रिप्लेस x with 6 plus y. It is 6 plus y whole square plus y square equals to 468. Again identity is there. This is a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab plus y square equals to 468. Y square 2y square plus 12y plus 36. 468 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0. डन. सो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है. सब्ट्रैक्ट दिस टू टर्म्स. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. डन. सो नेक्स्ट इज 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36 माइनस 468 432. डन. अब 2 कॉमन है, अब 2 कॉमन पिक करके राइट साइड से शिफ्ट कर देते हैं 0 की तरफ और वो वैनिश हो जाएगा. डन. अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक. सो आप तीनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो. मैं फैक्टराइजेशन से ही करूंगी इसको, मेरे को वो ज्यादा इजी लगता है कंपैरेटिव टू अदर मेथड्स. सो नाउ फैक्टराइज दिस वन. सो दिस इज द फर्स्ट पेयर. y is a common from first pair. And same as it is,
taking common from second pair, minus 12. Is that clear? Okay, done. Our first bracket is y plus 18 and second bracket is y minus 12. Differently हम लिख लेते हैं इसको, and first value is minus 18. Again twist is here. क्या y की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? क्या अभी कोई आपने ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करा है जिसमें आपको साइड माइनस 18 माइनस में दी होती हो? दिस इज नॉट पॉसिबल. कोई भी साइड हम नेगेटिव में नहीं लिखते, किसी भी चीज की लेंथ. डन. सो दिस इज रिजेक्टेड. आवर वैल्यू ऑफ y इज 12. अब y की वैल्यू तो हमें पता चल गई. अभी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे सेकंड में, अब वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो. मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ. पुट इन सेकंड and our second equation is x equals to 6 plus y. 6 plus y. y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी. x is 18. So side of larger square is x meters. So side of larger square, that is x. So x की हमारे पास वैल्यू है 18. It is 18 meters. And side of smaller scale, that is 12 meters. Clear this one? Clear? So please take the screenshot of this question. So I hope सबको ये questions clear हो गए होंगे. इजी मेथड है, इजी ट्रिक्स हैं. So please आप इसको अच्छे से एक बार देखो. If you have any doubt, any problem, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो. And like, comment and share the videos. Also subscribe the channel. Thank you.